کیا جائے گا۔ بہاولپور چولستان جیپ ریلی میں فنشنگ پوائنٹ پر 2 موٹر سائیکل ٹکرانے کے باعث حادثہ، 2 افراد زخمی، ریسکیو نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ دیر سے ہی صحیح خیال آیا تو صحیح، ملتان ترقیاتی ادارہ کی فاطمہ جناح ہاؤسنگ اسکیم کے مکینوں کے لیے بڑی خبر، 10 سال بعد بجلی فراہمی کے لیے میپکو کو 26 کروڑ روپے کے فنڈ جاری، گریڈ اسٹیشن بھی بنایا جائے گا۔ وکٹوریا اسپتال کے مریضوں کو ملیں گی اب بہترین سہولیات، مریضوں کی علاج معالجے اور تزئین آرائش کے لیے 8 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ جاری۔ کھانے وال کے مکینوں کے لیے خوشخبری، 5 کروڑ روپے کی لاگت سے گیس پائپ لائن منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ایم این اے محمد خان ڈاہا اور ایم پی اے چودھری فضل الرحمان نے پائپ لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ شریف کے شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر، کروڑوں روپے کی لاگت سے فیلڈ لائٹ کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر ہوگی اور انٹرنیشنل لیول کی پچ بھی بنائی جائے گی۔ نشتر ہسپتال ملتان میں سیزنل انفلوئنزا سے متاثرہ 3 مریض زیر علاج، جنوبی پنجاب میں انفلوئنزا سے ہلاکتوں کی تعداد 58 ہو گئی۔ میونسپل کمیٹی راجن پور کا اجلاس بدنظمی کے باعث مچھلی منڈی میں تبدیل، حکومتی اراکین اور اپوزیشن کے ایک دوسرے پر تنقیدی وار۔ ملتان 55 بستی شور کوٹ میں سہولیات کا فقدان، جا بجا گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا ناقص نظام، تعفن اور سیوریج زدہ پانی کے باعث علاقہ مکینوں کا جینا محال ہو گیا، شہری سراپا احتجاج۔ میونسپل انتظامیہ میاں والی کی مبینہ غفلت، مرکزی شہر خاموشہ کچرا کنڈی میں تبدیل، جا بجا کچرے کے ڈھیر اور تعفن، اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ میاں چنو کے علاقے چمننگ بستی میں سرکاری اراضی پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، میونسپل کمیٹی کی حدود میں صفائی کے ناقص انتظامات، انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ میرا غازی خان کی اتوار بازار مبینہ انتظامی غفلت کا شکار، بازار کے بورڈ تو لگا دیے گئے مگر بازار نہ لگایا جا سکا، شہری شیخ النوش کی چیزیں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ صادق آباد سے رحیم یار خان جانے والی سڑک خستہ حالی کا شکار، جگہ جگہ گڑھے حادثات معمول، ادھر سناوا لنگر سرائے روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، راہگیروں کو پریشانی کا سامنا۔ جہانیہ میں سسرالیوں کے تشدد اور پولیس افسران کے رویے سے دل برداشتہ خاتون کے آگ لگانے کا معاملہ، آر پی ایم ملتان محمد ادریس کا تھانہ جہانیہ اور ٹھٹا کا دورہ، تفتیشی افسران کو کیسز جلد از جلد میرٹ پر حل کرنے کی ہدایت۔ صادق آباد جمال دین والی روڈ پر شراب کے نشے میں موٹر سائیکل سوار کی راہگیر کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں راہگیر شدید زخمی، موٹر سائیکل سوار سے پلاسٹک شاپر بیگ میں بھاری مقدار میں شراب برآمد۔ خاندانی دشمنی پر تھانہ صدر میلسی کی حدود موضع چمن میں فائرنگ، خاتون اور بچے سمیت 4 افراد زخمی، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ جامپور حمید والا کے قریب کیری ڈبہ اور ٹرالر میں تصادم، عورت اور بچے سمیت 4 افراد جاں بحق، ملتان ریاستپال ریلوے اسٹیشن کے قریب عورت کنویں میں گرنے سے جاں بحق، لاش ٹاٹے پور ہسپتال منتقل۔ میاں والی مظفر پور میں موٹر سائیکل لوڈر رکشہ 3 افراد سمیت نہر میں گر گیا، ریسکیو کے جوانوں نے رکشے کو اور 3 افراد کو باہر نکال لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے بار کے سالانہ انتخابات، 24 فروری کو ملتان ہائی کورٹ بہاولپور بینچ سمیت علاقائی بینچز میں تعطیل، چیف جسٹس محمد یاور علی کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری۔ پنجاب کے اضلاع میں قائم خصوصی عدالتوں کے سروسز ٹریبیونل کی تشکیل نو، ملتان کے جسٹس محمد قاسم خان کی سربراہی میں 3 رکنی سروس قائم، ٹریبیونل محکمہ اپیلوں پر سماعت کرے گا۔
पाकिस्तान मुत्तहिदा किसान महाज अयूब खान और किसान महाज के मरकजी रहनुमा सरदार तारिक बुगटी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयूब खान कहते हैं कि पानी की किल्लत ज़राई माशियत के लिए बड़ा बहरान पैदा करेगी। मुमकिन कर दिखाया, सर्द इलाकों में काश्त की जाने वाली स्ट्रॉबेरी को दरियाए चनाब के इलाका और ठट्टा कुरैशी के गर्म इलाकों में काश्त। मुल्तान की समाजी शख्सियत रियाज शाहीन चौधरी की वालिदा की रस्म कुल अदा। जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद अयूब मोगल समेत समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। बहावलपुर स्मॉल इंडस्ट्री एरिया में बेल ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया। डेरा नवाब साहिब में सफेद चादर ओढ़े बुलंद बाला दीवारों के झुरमुट में वाक़ सादिक घर पैलेस मुस्लिम आर्ट का बेहतरीन नमूना है। महल की दरो दीवार पर मौजूद नक्शो निगारी सियाहों की तवज्जो का मरकज। रहीम यार खान के मंचनों का संडे को फन डे। क्रिकेट के दीवानों को जहां जगह मिली खेल का मैदान बना लिया। छुट्टी के रोज बहावलपुर रिंग स्टेडियम में क्रिकेट के मतवालों के ढेर। साड़ी धरती दामान मुल्तान सुल्तान। रहीम यार खान के नौजवान भी मुल्तान सुल्तान के दीवाने। शुएब मलिक पोलार्ड छड़ाएंगे छक्के मुखालिफों के। इमरान ताहिर उमर गुल और जुनैद खान की बाउलिंग करेगी मुखालिफों को ढेर। और शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज। क्रिकेट का बड़ा मेला सजने में 3 रोज बाकी। जनूबी पंजाब में क्रिकेट के मतवाले BPSL में मुल्तान सुल्तान की जीत के लिए उम्मीद। This transmission is brought to you by The Smart School, हम सबका स्कूल, a project of the city school. हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बदलती दुनिया में भी तहजीब का Project of the city चलन, school. कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ। बुलेटिन का आगाज करें, अहम खबर शामिल करें। नैब मुल्तान ने 2 बड़े केसेस में 22 से ज्यादा मौजूद और साबिक इंतजामी अफसरान को कल तलब कर लिया। तलब किए गए ज्यादातर अफसरान का ताल्लुक मेट्रो बस प्रोजेक्ट से है। तलब किए जाने वाले अफराद का ताल्लुक ज्यादातर मेट्रो बस प्रोजेक्ट से है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर नया मुल्तान ने 2 बड़े केसेस में 22 से ज्यादा मौजूदा और साबिक इंतजामी अफसरान को कल तलब कर लिया है। तलब किए गए ज्यादातर अफसरान का ताल्लुक मेट्रो बस प्रोजेक्ट से है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर नया मुल्तान ने 2 बड़े केसेस में 22 से ज्यादा मौजूदा और साबिक इंतजामी अफसरान को कल तलब कर लिया। तलब किए गए ज्यादातर अफसरान का ताल्लुक मेट्रो बस प्रोजेक्ट से है। तलब किए जाने वाले अफसरान में कौन कौन शामिल है, मजीद जान लेते हैं मसर खान से। जी मसर खान बताएगा कौन कौन से अफसरान शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये मेट्रो बस केस में पहले भी मुतअद्दिद अफसरान को नए मुल्तान ने तलब किया और उनके बयान कलमबंद किए, और अब दोबारा से
कल जो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड हैं साबिक चेयरमैन इरफान इलाही उनको तलब किया गया है। उसके साथ साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो पंजाब है उसके साबिक सेक्रेटरी आरिफ अनवर बलोच सुमैद, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर खालिद मुश्ताक, उसके साथ साथ मेंबर सोशल सेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं मोहम्मद इजाज हुसैन, डॉक्टर नवीद अहमद चौधरी, उसके साथ साबिक एक मेंबर हैं मिसेज बुशरा अवान, उसके साथ असिस्टेंट चीफ कोऑर्डिनेटर हैं चौधरी मोहम्मद अली नजीर समेत जो मुल्तान के साबिक कमिश्नर हैं उनको भी तलब किया गया है, जबकि साबिक डीसी मुल्तान हैं जाहिद सलीम मोंदल उनको भी खास तौर पर तलब किया गया है, जबकि जो निजी बैंक हैं दो कराची और लाहौर में उनके जो ऑपरेशनिंग मैनेजर हैं उनको भी तलब किया गया है। इसके साथ साथ मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में ही जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि ये मुल्तान मेट्रो बस करप्शन जो तामीर हुई थी, जो बनाई गई थी, ये मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए बनाई गई थी, उसके भी मुतादिद अफसरान को कल तलब किया गया है और इस मौके पर नए मुल्तान की जानिब से बाकायदा उनको सवालनामा दिया जाएगा और उस सवालनामे का तहरीरी जवाब इनसे लिया जाएगा। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जो नए मुल्तान है उसकी जानिब से पहले भी जो तकरीबन 17 के करीब जो अफसरान थे, ऑफिशियल थे, उनको तलब किया गया था और उनसे बाकायदा सवालनामे उनको दिए गए, जवाबात तहरीरी तौर पर भी दिए गए थे और ज़बानी भी उनसे पूछताछ की गई थी। अब दोबारा उनमें से चंद ऐसे अफसरान हैं जैसे साबिक कमिश्नर मुल्तान है असदुल्ला खान, उसके साथ साथ दीगर जो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड हैं इरफान इलाही, इन समेत कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनको दूसरी बार तलब किया जा रहा है, जबकि जो बाज कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनको पहली बार तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मसर खान हमें अपडेट करने का। फिर से अपडेट करें मुल्तान से, जहां पे मुल्तान में फजल मॉडल बहावलपुर रोड के करीब घर की ज़ेरे तामीर छत गिर गई, 6 अफराद छत तले दबकर जख्मी हो गए। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर यह वाकया पेश आया, 13 साला बच्चा मलबे तले आकर जान बहक हो गया। तमाम जख्मियों को निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में फजल मॉडल बहावलपुर रोड के करीब घर की जेर तामीर छत गिर गई, 6 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये फजल मॉडल के करीब जेरे तामीर ये छत थी जो कि गिरी थी, जिसके बाइस जो है वो जैन 13 साल जो लड़का था वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि बकिया जो जख्मी थे उनमें नुसरत बीबी 30 साल और मक्की 8 साल, रोजीना 8 साल, सानिया 7 साल और नासिर जिसकी एज जो है वो 30 साल बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सैयद माजिन, आप हमें आगाह कर रहे थे। 13वीं चोलिस्तान जीप रैली में रेस में शामिल गाड़ियों को वापस आने का सिलसिला जारी है, जिसमें साहिबजादा सुल्तान सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे, जबकि गुज़श्ता रैली के फातेह नादिर मक्सी फिनिशिंग पॉइंट पर दूसरे नंबर पर पहुंचे। आपको अपडेट कर रहे हैं जीप रैली के हवाले से। 13वीं चोलिस्तान जीप रैली में रेस में शामिल गाड़ियों का वापस आने का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं 13वीं चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से आज आखिरी रोज है जहां पर गाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर मोहसिन मुल्क से। जी मोहसिन मुल्क, बताइएगा। जी बिल्कुल, 13वीं चोलिस्तान जीप रैली अपनी रंगीनियों के साथ अब इख्तितामी मरहले तक पहुंच गई है और इसमें जो फाइनल राउंड है इस कैटेगरी का, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से जो निकली थी गाड़ियां, जो जीप्स निकली थी, वो अब वक्फे से जो फिनिशिंग लाइन है वहां पर पहुंच रही हैं। सबसे पहले नादिर मक्सी यहां पर पहुंचे और उसके बाद साहबजादा सुल्तान यहां पर फिनिशिंग लाइन उन्होंने क्रॉस की और इसी तरीके से जाफर मक्सी और दीगर जो रोनी पटेल और दीगर जो 10 जीप्स हैं अभी तक यहां पर पहुंच गई हैं। इससे पीछे भी एक फिनिशिंग लाइन है जिसको 13 किलोमीटर का फासला कहा जा रहा है, लेकिन फाइनल ये फिनिशिंग लाइन है जहां पर अब तक 10 गाड़ियां पहुंची हैं। 70% गाड़ियां जो हैं वो अपना रूट कंप्लीट करके आ चुकी हैं। 240 किलोमीटर का ये ट्रैक है, तवील ट्रैक है। जब यहाँ पर नादिर मक्सी पहुंचे तो उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि ट्रैक काफी पिछली दफा से बेहतर है, क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी और सुबह सवेरे जो हल्की हल्की धूप थी उन्होंने भी उनको फायदा दिया, क्योंकि गाड़ियां हीट अप नहीं हुई और स्मूथ ड्राइव का सिलसिला जारी रहा। अभी भी शायकीन को इंतजार है उनके फेवरेट खिलाड़ियों का, उनके फेवरेट
ड्राइवर्स की आमद का, और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ये शायकीन मौजूद हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं इन गाड़ियों का। जैसे जैसे गाड़ी आती है अपने फेवरेट ड्राइवर की तरफ यहाँ से शायकीन उनकी तरफ लपकते हैं, उनके साथ सेल्फियां खींचते हैं। हतमी और सरकारी नतीजा टीडीसीपी अनाउंस करेगी, लेकिन अब तक की जो सिनेरियो है उसमें ये बता दें कि नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान की गाड़ी यहाँ पर सबसे पहले पहुंची और इसका तमाम तर सिनेरियो दिखाई भी दे रहा है। और जब हमारी साहबजादा सुल्तान से बात हुई तो उनका कहना था 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा इस ट्रैक पर, वो भी ट्रैक को काफी बेहतर बता रहे थे। ओवरऑल सिचुएशन यही है कि कब कौन सी गाड़ी फाइनल गाड़ी आने तक टीडीसीपी कोई भी सरकारी नतीजा नहीं सुना सकती। बहुत सारे लोग यहाँ पर बातें भी कर रहे हैं, अंदाजे भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हतमी नतीजा नहीं है, क्योंकि हतमी नतीजा उसी वक्त सामने आएगा जब सरकारी तौर पर टीडीसीपी अपना रिजल्ट अनाउंस करेगा। चूंकि ये एक जीप रैली है, इसमें पॉइंट्स भी होते हैं और इसमें प्लेंटीज भी होती हैं, इसलिए बहुत सारे ड्राइवर्स पहले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये नहीं कि वो जीत गए हैं, क्योंकि उसमें प्लेंटीज भी लगती हैं और प्लेंटीज लग के पॉइंट्स कम होते हैं और उन पॉइंट्स पर फैसला होगा कि कौन सा ड्राइवर जिसने अपने पूरे पॉइंट्स के साथ पूरी रैली में अपनी जीप भगाई और उसको फातिहा करार दिया जाएगा। नादिर मक्सी, रोनी पटेल, साहबजादा सुल्तान, जाफर मक्सी, ये वो नाम है जो कि हॉट फेवरेट है शुरू दिन से, लेकिन इनके दरमियान मुकाबला कह सकते हैं कोई और भी इस मुकाबले में विनर करार दिया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रैक और मौसम दोनों ने ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पर एक बड़ी तादाद है जो कि शायकीन की है, उनसे पूछते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं जी आप? मैं नवाब साहब से आया हूँ, नवाब साहब का जो पैलेस है सादेगढ़ पैलेस में। कैसा लग रहा है यहाँ पे मौसम? एंजॉय हो रहा है यहाँ पे? VIP मौसम है, हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और जो है ना सुबह सुबह देखा है हमने, ट्रैक देखा, अब एंजॉय करेंगे, फिर अब फाइनल राउंड देखेंगे, फिर चले जाएंगे सर। एंजॉय कर रहे हैं मोटरसाइकिल। क्या क्या एंजॉय किया? अभी आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है यहाँ पर? हमारे सभी फेवरेट है, वैसे तो नादिर मक्सी था हमारा फेवरेट। ठीक है, वो माशाल्लाह आगे है, उसका देखेंगे अब क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, ठीक है जी, रिजल्ट का सबको इंतजार है, दिलों की धड़कनें तेज हैं। हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए जी? हम सर डेर नवाब से आए हैं। अच्छा, आप भी डेर नवाब। सुनाए जी, कौन सा फेवरेट प्लेयर आपका? सर नादिर मक्सी हमारा फेवरेट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे रैली के हवाले से। आपको बताएं 13वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली को देखने के लिए आने वाले सयाह इस वक्त तारीखी मकाम किला दिरावड़ पर मौजूद है, जहां पर सैर और तफरीह का सिलसिला भी जारी है, जहां ऊंटों की सवारी सब के लिए तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अतुल्ला शारी से। जी अतर बताइएगा, ऊंटों की सवारी और सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि बात करें किला दिरावड़ के हवाले से, यहाँ पर 13वीं डेजर्ट चोलिस्तान जीप रैली जो है आज उसका इख्तितामी दिन है। 4 दिन से लोग सयाह यहाँ पर आए हुए थे और लोग यहाँ पर ऊँटों की सवारी भी कर रहे थे। मैं और सीए सकलैन शाह भी इस वक्त ऊँटों की सवारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किला दिरावड़ के मकाम के ऊपर कितना जो है वो रश है, लोगों की बड़ी तादाद एक यहाँ पर मौजूद है। जाहिर बात है सारा दिन आज उन्होंने ट्रैक के ऊपर गुजारा, मुख्तलिफ यहाँ पर और कल्चरल नाइट जैसे थी, और इस वक्त हमारे ऊंट जो हैं वो भी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो चुके हुए हैं और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है। जाहिर बात है सिर्फ जीप रैली ही नहीं, इसके साथ जो किला दिरावड़ को यहाँ पर लोग देखने आते हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ के कल्चर को देखने के लिए आते हैं, यहाँ की सकाफत को, यहाँ के लोगों के रहन सहन को मिलने के लिए भी यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो इस वक्त ऊँटों की सवारी जहाँ पर मुख्तलिफ लोग ऊँटों के ऊपर बैठे हुए हैं, इसी तरह हम भी इस वक्त ऊँटों के ऊपर बैठकर अपने नाजरीन को किला दिरावड़ के और इसके इर्द गिर्द के, अगर आपको सकलैन शाह दिखाएं तो सामने वो शाही मस्जिद है जो यहाँ पर खूबसूरती का एक फन तामीर का एक शाहकार है। इस वक्त अगर हम बात करें किला दिरावड़ की तो उसकी रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो भी शुरू हो चुका हुआ है और मस्जिद के साथ ही बिल्कुल सामने ये गोदाम है गला के जो अभी इस वक्त जेरे तामीर है। तो लोगों की एक बड़ी तादाद सकलैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मौजूद है और फिर इसी तरह हम भी चक्कर लेंगे। जाहिर बात है हम भी चाह रहे हैं कि हम आपको दिखाएं कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है। मेरे पीछे देखें तो मोटरसाइकिल यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर लोग जो हैं
वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक मजे का समय है, वहां से ट्रैक से जो भी बंदा वापस आ रहा है, अपने जैसे मोहसिनुल मुल्क बता रहे थे कि लोगों को शिद्दत से इंतजार है कि टीडीसीपी कब रिजल्ट अनाउंस करता है और कब उनको पता चलता है कि किस जो ड्राइवर है वो अपने कितने पॉइंट्स के साथ वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आया है। तो इस वक्त तक ये सूरत हाल है कि यहाँ पर लोगों का एक बड़ा जो रश है वो देखने को मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अतल अशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि 13वीं चोलिस्तान जीप रैली में रेस में शामिल गाड़ियों का वापस आने का सिलसिला जारी है। मोहसिन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद उनसे फिर से जानते हैं। जी मोहसिन, अब बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? देखें, अभी भी एक जूं करते फराटे मारते गाड़ी यहां से गुजरी है। मतलब है कि जो गाड़ियों का सिलसिला है वो जारी है, वापस आने का टाइम नोट किया जा रहा है। दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। कुछ ही देर में सरकारी और हतमी नतीजे का भी ऐलान कर दिया जाएगा। 4 दिन से ये जारी मेला जो है अपनी पूरी रौनकों के साथ आज अरूज पर है। फैमिलीज आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, ना सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी ड्राइवर इस चोलिस्तान जीप रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सुबह के टाइम बड़ा अच्छा मौसम था, कुछ देर पहले भी काफी अच्छा मौसम था, लेकिन अब हल्की हल्की धूप आ गई है। माथे पे हल्का हल्का पसीना जरूर है, लेकिन लोगों का जोश और खरोश इतना है कि वो वापस जाने वाले नहीं है। उनका कहना है कि यहीं पर रहकर वो नतीजा सुने बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 दिन से ये जारी मेला आज अपने इख्तितामी मराहिल में है और इख्तितामी मराहिल में जो नतीजा होगा वो सबके सामने है। कुछ कंपनीज ने ड्राइवर्स के लिए पैसों का भी ऐलान किया है, कुछ कंपनीज उन्हें नगद इनाम दे रही हैं और टीडीसीपी तकसीम इनामात में ड्राइवर्स को ट्रॉफीज भी मिलेंगी। और ट्रॉफी जो है आजादी तौर पर यहाँ पर दी जाती हैं, ना सिर्फ उन कैटेगरीज में जहाँ पर इस रैली के दौरान ड्राइवर हजरात जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि खवातीन की एक कैटेगरी थी जिसमें खवातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया। गुज़श्ता रोज भी जो रोनी पटेल की वाइफ है तुष्णा पटेल, उन्होंने लीडिंग रोल अदा किया। वो शुरू से ही 4था साल है आज इस रैली में, वो 4थे साल मुसलसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस बार की विनर तफसीली आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि 13वीं चोलिस्तान जीप रैली में रेस में शामिल गाड़ियों का वापस आने का सिलसिला जारी है, जिसमें साहिबजादा सुल्तान सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे, जबकि गुज़श्ता रैली के फातेह नादिर मक्सी फिनिशिंग पॉइंट पर दूसरे नंबर पर पहुंचे। अब आपको बताएं 13वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में जहां जमीन पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, वहीं पैराग्लाइडर्स आने वाले सयाहों को आसमान की सैर करवा रही हैं। अगर आपको भी आसमान की सैर करते हुए चोलिस्तान जीप रैली को एंजॉय करना है तो पहुंच जाएं किला दड़ावर। जी हां, मजीद पैराग्लाइडिंग का बता रहे हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर से मोहसिनुल मुल्क। जी मोहसिन, बताइएगा। आसमान पर उड़ना किसी की ख्वाहिश होती है और अगर ये हकीकत में मुमकिन हो जाए तो क्या ही मजा है। चोलिस्तान जीप रैली में जहां गाड़ियां तेज रफ्तारी से रेत पर भाग रही हैं, वहीं शायकीन को आसमान से रेगिस्तान का नजारा भी कराया जा रहा है। चोलिस्तान जीप रैली में पैराग्लाइडिंग के जरिए न सिर्फ रेत पर दौड़ती गाड़ियों का नजारा किया जा सकता है, बल्कि बुलंदोबाला तारीखी किला दरावड़ का मंजर भी अलग नजारा पेश करता है। जीप रैली में 4 पैराग्लाइडर्स को अलग अलग पॉइंट्स पर रखा गया है ताकि सयाह आसमान से रेगिस्तान की खूबसूरती का नजारा कर सके। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ बहावलपुर। मजीद आपको अपडेट करें, साबिक रियासत बहावलपुर के दारुल हुकूमत डेरा नवाब साहिब में सादिकगढ़ पैलेस अपनी खूबसूरती और रोनाई की वजह से जीप रैली में आने वाले सियाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर मोहसिन मुल्क की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान का व्हाइट हाउस सादिकगढ़ पैलेस अपनी खूबसूरती और दिलकश तर्ज तमीर की वजह से जीप रैली में आने वाले सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। सादिकगढ़ महल 1306 हिजरी में 15 लाख की लागत से तमीर किया गया था, जिसमें इस दौर का पहला बिजली घर भी बनाया गया, जो न सिर्फ महल को बरकी तवानाई फराहम करता था बल्कि साबिक रियासत बहावलपुर के दारुल हुकूमत डेरा नवाब को भी रोशन रखता था। सादिकगढ़ पैलेस 24 मरबों पर मुश्तमिल है और इसकी 50 फुट ऊंची फसीलें 1 किलोमीटर से भी लंबी हैं, जिसके हर कोने पर फौजी बैरक भी बनाई गई थी। 1306 हिजरी में ये महल बना था और 15 लाख रुपए इस पर लागत आई थी। 4 मुरब्बे इसका कुल रकबा है, 4 दीवार के अंदर और 4 दीवार के बाहर हर दीवार के साथ 4-4 मुरब्बे बाग है। चोलिस्तान जीप रैली में आने वाले सियाह इस साबका रियासती असेंबली की इमारत को देखकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सादिकगढ़ पैलेस को ये एजाज भी हासिल है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान बनने के बाद नवाब सादिक खान की दावत पर यहाँ आए थे। इनके अलावा मुतअद्दिद मुल्कों के बादशाह भी यहीं क़याम कर चुके हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज और काशिफ बेग के साथ मोहसिन मुल्क, बहावलपुर। सादिकगढ़ पैलेस के बाद आपको बताएं, बहावलपुर तारीखी खूबसूरत और महल्लात का शहर है। इसे देखने आज भी सियाह बहावलपुर आते हैं। बहावलपुर शहर को देखने के बाद इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। जी हां, आपको अपडेट करें बहावलपुर की खूबसूरती के हवाले से। बहावलपुर तारीखी खूबसूरती और महलात का शहर है। इसी बारे में मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि लोग जब बहावलपुर आते हैं तो इससे पहले बहावलपुर का उन्हें नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जब बहावलपुर आते हैं तो फिर आने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये महलात का शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ की जो दीदा जेब सड़कें हैं, दीदा जेब बिल्डिंग्स हैं, तारीखी इमारतें हैं, वो सबका दिल लुभाती हैं। तो ऐसी सूरत में सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर हो या दरबार महल हो या फिर खासतौर पर नूर महल हो, तो देखने के लिए बहुत दूर से, और जो बहावलपुर आता है वो नूर महल ना देखे ये मुमकिन नहीं है, तो नूर महल भी देखने जाते हैं। और सेंट्रल लाइब्रेरी भी बड़ी शाहकार इमारत है, तो ये देखने के लिए जाते हैं। तो बहावलपुर में आने वाले सयाहों का यही कहना है कि लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है पंजाब का, लेकिन हमने ये जो से सयाह आए थे इनका कहना था कि बहावलपुर जैसा शहर भी हमने पूरे पंजाब में नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि बहावलपुर एक खूबसूरत और मुकम्मल शहर है। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद। अब आपको बताएं, रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में निशा अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम न किए जाने का मामला उठाए जाने के बाद मरीजों की सुनी गई। आपको बता रहे हैं, रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में निशा अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम न किए जाने का मामला उठाए जाने के बाद मरीजों की सुनी गई। दवाइयों की किल्लत पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने दूसरे अस्पतालों से अद्वियात बतौर कर्ज उठा ली। दूसरी जानिब ऑर्डर किए गए अद्वियात में से 100 आइटम कंपनियों ने जारी कर दी, जिन्हें ड्रग टेस्ट लेबोरेटरी के अमल से गुजारा जा रहा है।
जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में चलने वाली निश्तर अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम न किए जाने का मामला उठाए जाने के बाद मरीजों की सुनी गई। दवाइयों की किल्लत पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने दूसरे अस्पतालों से अद्वियात बतौर कर्ज उठा ली। मजीद जानते हैं फैसल जहां से। जी फैसल जहां, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इससे कबल बड़े मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा था मुल्तान में आने वाले तमाम उन मरीजों को जो कि जनूबी पंजाब भर से आते हैं और जहां पर निश्तर हॉस्पिटल में उनको इलाज की सहूलत फराहम की जाती है। एक बहुत बड़ा मरकज है ये पूरे जनूबी पंजाब के अवाम के लिए। तो ऐसी सूरत में रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने जब इस तमाम तर मामले का जायजा लिया तो उसके बाद इस वक्त जो 130 ऑर्डर की गई जो मेडिसिन थी उनमें से 100 अद्वियात ऐसी हैं जो कि अब बाकायदा ऑर्डर मंगवाए जा चुके हैं और उनको डीटीएल प्रोसेस में कर दिया गया है। इसके अलावा विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर, इसके अलावा शेखुपुरा और लाहौर के मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से अद्वियात जो हैं वो बतौर कर्ज ले ली गई हैं, बतौर उधार ले ली गई हैं लोन प्रोसेस पे, ताकि उन मेडिसिन को वो बाद जैसे ही वो डीटीएल होने के बाद अस्पताल की पे आएंगी तो उन अस्पतालों को रहीम खान, बहावलपुर, शेखुपुरा और लाहौर के अस्पतालों को ये मेडिसिन जो है वो वापस कर दी जाएंगी। और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इस तमाम तर जो ये शॉर्टेज चल रही थी, इस शॉर्टेज पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि 130 मेडिसिन का दिया जाने वाला 71 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर मुकम्मल आ जाएगा और उसके बाद यकीनी तौर पर इस तमाम जो एक किल्लत पैदा हुई थी आर्थिक तौर पर, इस किल्लत पर काबू पा लिया जाएगा। इस सिलसिले में हमारी बात तर्जुमान निश्तर हॉस्पिटल से भी हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो किल्लत है इस बारे में सियासी अनासर भी पेश रहे और उन्होंने अपना किरदार अदा करते हुए एहतजाज जो था वो सियासी बुनियादों पर करवाया, जिससे एक मखसूस माफिया मुलव्वस है और उन लोगों के अपने उन कंपनियों से मफादात वाबस्ता है, जिस वजह से ये जो है एहतजाज करवाया गया। लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त जो कि इस किल्लत को काबू पाने के लिए अद्वियात का इंतजाम कर लिया गया है और इंतजाम जो है उसमें एमरजेंसी वार्ड जो है उसकी जो अद्वियात हैं उसे भी जनरल हॉस्पिटल के जो खाते में ले आया गया है ताकि वहां से जो अद्वियात की शॉर्टेज है उसको काबू पाया जा सके। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर लोकल परचेज जो है वो बड़ी हैवी की जा रही है ताकि जो शॉर्टेज है उसको आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर काबू पाया जाए और किसी भी मरीज को इस कमी का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया फैसल जहां, अब हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि 2 माह कबल 71 करोड़ रुपए के 130 आइटम्स ऑर्डर की गई थी जो ना हो सकी। न्यूज नाइट के प्रोग्राम में ये मामला उठाया गया जो सोल्व कर लिया गया है। अद्वियात की किल्लत पर काबू पा लिया गया है। आपको अपडेट करें रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में निश्तर अस्पताल में मौजूद जो किल्लत आई थी दवाई पर वो फिलहाल खत्म कर ली गई है, बतौर कर्ज मंगवा ली गई है दूसरे अस्पतालों से और नई कंपनी ने नई आइटम भी भिजवा दी है। फिलहाल किल्लत पर काबू पा लिया गया है, मरीजों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो गई है। आपको अपडेट करें न्यूज नाइट प्रोग्राम में ये मामला उठाया गया था जो सॉल्व हो गया है। जी हां, आपको अपडेट करें अद्वियात की किल्लत के हवाले से रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में निश्तर अस्पताल में मौजूद किल्लत पर काबू पा लिया गया। अद्वियात को दूसरे अस्पताल से बतौर कर्ज मंगवा लिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सादिकाबाद से रहीम यार खान जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। 5 साल पहले करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार है। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, हादसा मामूल बन गए हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक जावेद अनवर से। जी जावेद बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद से रहीम यार खान जाने वाली मेन शाहराह पर। ये सड़क जो है आज से 5 साल पहले तामीर की गई। इसी सड़क में नाकस मटीरियल इस्तेमाल से जो है ये सड़क 5 साल में तबाह हो गई है। जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं, जबकि सीवरेज के गंदे पानी की खड़े रहने से जो है यहाँ पर आए रोज हादसा होते हैं। आइए शहरियों से बात करते हैं कि वो इंतजामिया से क्या अपील करते हैं। जी हाँ, ये देख लें आपके सामने रोड का हालात जो है, यहाँ पे बहुत से मतलब कि सादिकाबाद से रहीम यार खान जाने वाली बहुत ही ट्रैफिक को बहुत मुश्किल का सामना होता है और ये सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, सड़कें टूट फूट का शिकार है और ये यहाँ पर रोज हादसा होते हैं। तो बराए मेहरबानी हुक्मरानों से हमारी यही अपील है कि इस रोड को दोबारा तामीर करवाया जाए। तो बिल्कुल यही शहरियों का भी कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी ने जो है वो रहीम यार खान जाने वाली सड़क जो है वो तबाह कर दी है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों अफराद सफर करके रहीम यार खान जाते हैं, जो आए रोज जो है यहाँ पर हादसा भी होते हैं। इन्होंने भी हुक्मरान से यही अपील की है कि इस रोड को जो है वो दोबारा से तामीर किया जाए ताकि सादिकाबाद से रहीम यार खान जाने वालों को सफर में दुश्वारी ना हो। जी
بہت شکریہ جاوید ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان سے, جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر طاہر شاہ نے UC3 کے دفتر اور ممبر سازی مہم کا افتتاح کر دیا. افتتاح میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی عاشر اشفاق سے. جی عاشر بتائیے گا. جی بالکل, اس ٹائم موجود ہے یونین کونسل 3 کے اندر, اور یہاں پر جو ہے آج پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے یونین کونسل 3 کا جو ہے افتتاح کیا گیا ہے. بابا طاہر شاہ صاحب جو سٹی صدر ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے, وہ یہاں پر موجود ہیں, اور اسی کے ساتھ جو ہے ممبر سازی مہم کا بھی آج سے جو ہے آغاز کر دیا گیا. یہاں پر سٹی صدر بابا طاہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آج سے یہاں پر آپ نے UC کا بھی افتتاح کیا, اس کے ساتھ ممبر سازی مہم کا بھی افتتاح کر دیا گیا, کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ پیپل پارٹی نے تقریباً 40 سال کے بعد یہ نئے سرے سے رکنیت سازی شروع کی ہے, اور اس کے اندر آج ہم افتتاح کر رہے ہیں یونین کونسل 3 کا جو یوتھ ونگ ہے ہمارا, ان کی طرف سے یہ رکنیت سازی شروع کی جا رہی ہے. اب تک ہم ڈیرہ غازی خان میں تقریباً 1000 سے زیادہ رکنیت بنا چکے ہیں پیپل پارٹی کی, اور اس طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی بنیادی لیول سے ایک یعنی یوں سمجھے فنڈامنٹل جو ہے اس کی وہ ہے, اس کے حساب سے جو ہے نا یہ ایک مضبوط ہمیں بنیاد فراہم کرے گا. اور آنے والے وقت میں عوامی رابطہ مہم ہماری کارکن ٹو کارکن جو ہے بہت تیز ہو جائے گی. جب قیادت ہماری آئے گی تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ سامنے نظر آ جائے گا. جی بالکل, 1000 کے قریب جو ہے یہاں پر ممبر سازی مہم جو ہے حاصل کی جا چکی ہے. کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. کچھ اور ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں. سر بتائیے گا, آج یہاں پر مہم کا آغاز کر دیا گیا, ممبر سازی مہم کا آغاز کر دیا گیا, کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی میں تحصیل ڈی جی خان کا جنرل سیکرٹری ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آج نئے ویژن کے ساتھ بھٹو شہید کے اس سوچ کو لے کر نئی قیادت بلاول بھٹو کے ساتھ یوتھ کو ہم فوکس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ڈی جی خان میں 1,20,000 کا ہمارا ٹارگٹ ہے ڈسٹرکٹ کا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 50,000 سے اوپر ہم اس وقت تک کر چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن میں انشاءاللہ سرپرائز دے گی, کیونکہ یوتھ جو 63% پاکستان کی ہے اس کی پیپلز پارٹی کے پاس ہی نمائندگی ہے, کیونکہ بلاول بھٹو ہمارا ینگ لیڈر ہے. جی بالکل, بلاول بھٹو ینگ لیڈر ہیں. تقریباً 50,000 کے قریب جو لوگ ہیں یہاں پر شمولیت اختیار کر چکے ہیں. مزید جو ہے 1 لاکھ سے اوپر جو ہے ٹارگٹ رکھا گیا ہے ممبر سازی مہم کے حوالے سے. یہاں پر ممبر سازی مہم جاری ہے. کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. سٹی صدر بھی یہاں پر موجود ہے, دیگر عہدیداران بھی یہاں پر موجود ہیں. بلاول بھٹو کی جانب سے پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس بار 2018 کے الیکشن میں ضرور کامیاب ہوگی. جی بہت شکریہ عاشر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پاکستان تحریک انصاف ٹی جی خان ورکرز اتحاد PTI جنوبی پنجاب کے صدر اسحاق خان خاقوانی کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں سید محسن سے. جی محسن بتائیے گا احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے. جی پاکستان تحریک انصاف کے ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے ورکرز اتحاد کے جو کارکنان ہیں وہ جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں اسحاق خان خاقوانی, ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے احتجاجی مظاہرے کا جو ہے مقصد کیا ہے, آپ کیوں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. ڈیرہ غازی خان میں پاکستان تحریک انصاف سب سے مضبوط سیاسی جماعت ہے اس وقت, لیکن شومی قسمت کہ آج سے 1 سال قبل وہاں پہ جو ضلعی صدر اور سٹی صدر جو بنائے گئے تھے وہ نااہل لوگ تھے. ہم کارکنان نے اس وقت اپنی آواز اوپر تک پہنچائی تو ان کو معطل کر دیا گیا. 7-8 ماہ کی معطلی کے بعد ملک اقبال ثاقب اور ہمایوں کو دوبارہ بحال کر دیا گیا. ان کو بحال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک شخص ہے سردار سیف الدین خان کھوسا, وہ 2018 کے الیکشن میں وہ جو اقبال ثاقب ضلعی صدر ہیں ان کے ذریعے ڈیرہ غازی خان کے 1 MNA کے حلقے اور 3 MPA کے حلقوں میں اس قسم کے کینڈیڈیٹ دینا چاہتا ہے جو کہ اس کے بھائیوں اور بھتیجوں اور والد سے مقابلہ نہ کر سکے. اگر وہ نااہل تھے ان کو معطل کیوں کیا گیا تھا, یا 7-8 مہینے میں وہ کھیر دھلے ہو گئے. بالکل, اگر وہ نااہل تھے تو ان کو دوبارہ بحال کیوں کیا گیا. یہی مطالبات ہیں تمام تر جو مظاہرین ورکرز کے اتحاد کے لوگ ہیں جو ڈیرہ غازی خان سے آئے ہوئے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ اسحاق خان خاقوانی جو ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لیں اور نااہل قیادت نامنظور کی نعرے بازی کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ محسن ہمیں آگاہ کرنے کا. اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان سے, جہاں پہ آسٹریلین پرندہ شترمرغ رحیم یار خان بھی پہنچ گیا. محکمہ لائف اسٹاک کی گاڑیوں کے پروٹوکول میں شترمرغ کو شہر بھر میں گھمایا گیا.
शुतुरमुर्ग की फार्मिंग और गोश्त की अफादियत को उजागर किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक, बताइएगा इस हवाले से। जी, ऑस्ट्रेलियन परिंदा शुतुरमुर्ग रहीम यार खान पहुंचा तो रहीम यार खान की अवाम के लिए एक अनोखी चीज थी। हर ये शहर में घुमाया गया तो सब ने इसके साथ सेल्फियां बनाई, क्योंकि शुतुरमुर्ग की फार्मिंग को फरोग दिया जा रहा है। आज इसका गोश्त फरोग किया जा रहा है 1200 रुपए केजी, मगर अवाम इस तरह यहाँ पर उमड़ आई है जिस तरह गोश्त को फ्री यहाँ पर तकसीम किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइव स्टॉक चोलिस्तान डॉक्टर अब्दुल रशीद शानी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, शुतुरमुर्ग आज रहीम यार खान में पहली दफा यहाँ पर आए हैं। अवाम का रश ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई अनोखी चीज रहीम यार खान में आ चुकी हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का परिंदा रहीम यार खान में पहली दफा आया है और लोग इसको देख भी रहे हैं, शहर में भी घुमाया गया है। इसकी क्या खासियत है गोश्त की जो इसको फरोग दिया जा रहा है इसकी फार्मिंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के तावन से शुतुरमुर्ग के गोश्त की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि जिसमें शुतुरमुर्ग के पालने वाले हजरात के लिए कि फी परिंदा 10,000 रुपये सब्सिडी का शुरू किया है। इसके अलावा इसका गोश्त में ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे हार्ट पेशेंट के जो मरीज होते हैं, इसके अलावा हेपेटाइटिस वगैरह, इनको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। जिंक का लेवल इसमें बहुत अच्छा होता है, जिससे एक इंसुलिन बनती है और डायबिटिक जो मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनमें भी रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारी आवाम से तमाश है, अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये गोश्त इस्तेमाल करें और बाकी जो बड़ा गोश्त है इसी हवाले से इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। देखिए, बेनिफिट्स हैं। शुतुरमुर्ग के दो ही परिंदे हैं, दो परिंदे जिन्होंने खरीदने अभी अभी आके यहाँ पर खरीद ले, क्योंकि अवाम का रश लग रहा है और अवाम यही चाह रही है कि जैसे ही इसको ज़िबा किया जाए उनका गोश्त लेकर वहां पर चला जाए। कीमत इसकी 1200 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर ये कहा जाता है कि जितनी इसकी खासियत है ये कीमत कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे थे कि ये हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए भी फायदामंद है और जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए भी फायदामंद है। तो ये गोश्त जिसने खरीदना है अभी अभी आ जाए, 1200 रुपये केजी मिलेगा, क्योंकि रश तो ऐसे है कि लग तो ऐसे ही रहा है जैसे ये फ्री तकसीम हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आसिम हमें आगाह करने का। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई। बात करते हैं खानेवाल के हवाले से। खानेवाल में 5 करोड़ रुपए की लागत से फराहम की जाने वाली सुई गैस पाइपलाइन का संगे बुनियाद MNA मोहम्मद खान डाहा और MP चौधरी फजलुर रहमान ने रख दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। खानेवाल का नवाही इलाका है, 13 चक। और सूबाई हल्के की अगर बात की जाए तो 215 सूबाई हल्के में ये एक बहुत बड़ी गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर सुई गैस की सहूलत फराहम की गई है। MNA मोहम्मद खान डाहा और सूबाई MP चौधरी फजलुर रहमान यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और बाकायदा से उन्होंने सुई गैस की फराहमी का जो इफ्तिताह किया है। इस वक्त हमारे मौजूद हैं MNA मोहम्मद खान डाहा, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि ये सुई गैस की जो आज इफ्तिताह किया गया, सहूलत दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो डेवलपमेंट के काम हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसमें चाहे शहरी आबादियां हो या देहात हों, उन सब पे फोकस रखा है। और वही ये वजह है कि आप देखें कि आज से 5 साल पहले जो हाल था कि ना बिजली थी ना गैस थी, और ये मियां साहब ने अपने दौर में इम्प्रूवमेंट करके अब देहातों में भी ये चीज़ें ला रहे हैं, बिजली भी गैस भी। और ये काम इस तरह, इसके अलावा और भी बहुत से देहात हैं, वो आपको आने वाले दिनों में साथ साथ पता चलता जाएगा। और ये पूरे पाकिस्तान में
खुशहाली की एक निशानी है कि अगर देहातों में भी काम हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि एमएनए मोहम्मद खान डाका कहना यह था कि उनके कायद मियां नवाज शरीफ ने जो 2013 में वादे किए थे वो कौम से पूरे किए जा रहे हैं। एमपी चौधरी फजलुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका सूबाई हल्का है, इनसे भी जानेंगे। जी बताइएगा कि सुई गैस के इफ्तिताह के इस मौके पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि इस वक्त हम 13 वनोई में चक गांव में खड़े हैं, जिसकी एक बहनी है। 13 वनोई में पहले भी गैस आई हुई है। ये भी इस गैस से महरूमियत थी लोगों को, इनकी महरूमियत दूर करने के लिए ये हमारी जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से हमारी हुकूमत की तरजीह रही है, बुनियादी तरजीह रही है कि हर शहर और देहात के जो जरूरियात जिंदगी है उसको मैनेज किया जाए। लोगों में मायूसी फैलती देहात में लोगों को कि शहरी लोग मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहे हैं, हम इस चीजों से महरूम हैं, गैस के से, बिजली से। उसकी महरूमियत खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ी अहमियत की हमल है गैस जो है देहात में पहुंचाना। ये सिर्फ तो 13 वनोई के लिए नहीं है, हमारे 215 हो, NA 157 हो, कोशिश हो रही है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सहूलत मुयस्सर की जाए। जी बिल्कुल, कोशिश है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कि शहरियों के साथ साथ दही इलाके में भी उन्हें वही सहूलतें दी जाएं जो शहरी लोग जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। ऐसा कहना है MP चौधरी फजलुर रहमान का। जी बहुत शुक्रिया नदीम हमें आगाह करने का। अब आपको बताएं बहावल नगर से, जहां पर थाना सदर के आते हुए लगे कदीमी दरख्त से अचानक पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे शहरी बोतलों में डालकर अपने मरीजों के लिए ले जाते हैं और इन्हें उस पानी से मुख्तलिफ बीमारियों से उन्हें शिफा भी मिल रही है। इस अनोखे दरख्त की मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसे कुदरत का करिश्मा कहें या लोगों को यकीन कहें कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सदर बहावल नगर में, जहाँ पर जो एक दरख्त है, बड़ा कदीमी दरख्त है, और इस दरख्त से जो अचानक जो है वो पानी का चश्मा फूट पड़ा है और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इसको चश्मे को देखने के लिए यहाँ पहुँच जाती है पानी के। और यहाँ से जो निकलने वाला पानी है इसको बोतलों में भरकर जो मरीजों के लिए लेके जाते हैं और इनका कहना यह है कि जो ये पानी है ये मरीजों के लिए ये शफा का बायस बन रहा है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि आप जो है इस पानी को लेकर क्या करते हैं। जी ये खारिश के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ मैं देख रहा हूँ मुसलसल लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है जो यहाँ इस दरख्त के पास आते हैं और यहाँ से पानी हासिल करते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और इसके लिए ये खास तौर पर ये खारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत फायदे हैं, पुरानी से पुरानी जितनी भी खारिश है वो इससे दूर हो रही है। इसको शहर के नामवर हकीम जो हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, इसको यहाँ से बोतलों में भर के अपने साथ लेके जा रहे हैं। नहीं, आपका कहना यह है कि आप लोगों को जो मरीज है उनको इस पानी पिलाने से उनकी जो बीमारी है वो खत्म हो रही है। जी बिल्कुल, इससे बहुत फायदा हासिल हो रहा है। इसको जिस्म पे लगाने से जितनी भी पुरानी सी पुरानी खारिशें हैं वो भी दूर हो रही हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है। और आप अपने मरीज के लिए खुद भी लेकर गए हैं? जी यहाँ से मैं अब लेने के लिए भी आया हूँ, इससे पहले भी मैं 1 से 2 दफा यहाँ से पानी लेके गया हूँ। इसमें तकरीबन 5 से 7 दिन हो गए इस चश्मे को चलते हुए। जी ये थे एक शहरी। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो थाना सदर के एक अहलकार भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो चश्मा दरख्त से फूटा है ये आपके इल्म में कब आया था और ये कब जो है आपके इल्म में ये चीज देखने में आई है और लोग जो है उसको क्या कहते हैं। जी अब मुझे तो मैं सिलसिले तो 14-15 दिन हो गए हैं, ये काफी लोग आ रहे हैं यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं, उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। ये खारिश के लिए और सांस के मरीज के लिए और पूरी फुंसे के लिए भी बेहतर है, इससे बंदा नहा भी सकता है। और यहाँ से लोग जो है वो इसको बड़ी तादाद में आते हैं, रोज आते हैं। लोग आते हैं 4 से 5, 7, 8 बोतलें लेके जा रहे हैं, औरतें आ रही है लेने के लिए। और ये पानी जो है मुसलसल इसी तरह निकल रहा है, पानी सिलसिला ऐसे ही निकल रहा है, ये अल्लाह पाक का करिश्मा है। जी ये थे एक अहलकार। इसके अलावा शहरी जिनका कहना यही है कि ये एक अल्लाह ताला का करिश्मा है, मौजज़ा है और जो है ये दरख्त में से जो पानी है ये जो है मरीजों के लिए शफा का बायस बन रहा है और जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों खवातीन और मर्द दोनों जो है वो ये पानी लेने आ रहे हैं और अपने मरीजों को एक नुस्खे के तहत जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो है वो उनकी बीमारियां खत्म हो सकें। जी बहुत शुक्रिया कासिम अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, अहम खबर शामिल करें। बहावलपुर के स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया में बेली ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ अमराज के 20 डॉक्टरों की शिरकत की गई। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ अमराज के मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अमीन से। जी मोहम्मद अमीन, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، بہاولپور کے اسمال انڈسٹری ایریا میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. یہ بیلی ٹرسٹ کی جانب سے ایک مہینے میں چوتھے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں نہ صرف بہاولپور بلکہ اس کے مضافات سے بھی لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں. 20 سے زائد مختلف امراض کے جو اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر، وہ اس میڈیکل کیمپ میں شریک ہوئے اور دن بھر یہ آج جو ہے شام تک یہ کیمپ جاری رہے گا، جس میں ادویات کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے مختلف امراض کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی فری کیے جا رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے اس وقت کیمپ میں شہری موجود ہیں جو مفت ادویات دے رہے ہیں اور مفت ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں. بیلی ٹیسٹ کے جو حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا سال بھر نہ صرف بہاولپور بلکہ اس کے مضافات میں بھی اسی طرح فری میڈیکل کیمپوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں مختلف امراض اور ٹیسٹوں کے شہریوں کو فری سہولت دی جائے گی. جی بہت شکریہ محمد امین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں ملتان سے، جہاں پہ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں قومی ویمن ٹرائنگولر سیریز کا آج آخری لیگ میچ کھیلا گیا. میچ بلاسٹرز اور چیلنجرز کے درمیان کھیلا گیا. قومی ویمن ٹرائنگولر سیریز کا فائنل 20 فروری منگل کو کھیلا جائے گا. جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں قومی ویمن ٹرائنگولر سیریز کا آخری لیگ میچ کھیلا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں رضا ملک سے. جی رضا ملک، آگاہ کیجیے گا. جی اس وقت ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ کی رونقیاں اپنے عروج پر ہیں. قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی ٹرائنگولر سیریز کھیلی جا رہی ہے، جس میں پاکستان بھر سے 45 خواتین بہترین کرکٹرز جو ہیں وہ یہاں اپنا کھیل جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں اور اس حوالے سے جو ان کی کارکردگی کو جانچا جا رہا ہے. اس سیریز کا مقصد دورہ سری لنکا کے لیے 16 بہترین کھلاڑیوں کا چناؤ کرنا ہے. اس حوالے سے جو قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں، چیف کوچ ہیں مارک کولز، نیو ٹینس کا تعلق ہے، وہ بھی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے چیف سلیکٹر اور دیگر سلیکٹرز بھی یہاں ان خواتین کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں. اب 20 فروری کو اس جو ٹرائنگولر سیریز کا فائنل کھیلا جانا ہے. لیگ سسٹم میں یہ میچ ہو رہی ہے، جس میں پی سی بی بلاسٹرز، پی سی بی ڈائنامکس اور پی سی بی چیلنجرز کے نام سے جو ہے ٹیمیں بنائی گئی تھیں. اور جو 20 فروری کو پی سی بی ڈائنامکس اور پی سی بی چیلنجرز جو ہے وہ اس لیگ سیریز کا فائنل کھیلیں گی بہتر کارکردگی کی بنیاد پر، جس کے بعد دورہ سری لنکا کے لیے حتمی طور پر 16 شکریہ بیورو چیف رضا ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان کے شائقین پی ایس ایل میں ملتان سلطان کا ٹاکرا دیکھنے کے لیے پرجوش ہے، جبکہ اسپورٹ گراؤنڈ میں ملتان سلطان کی جیت کے لیے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں عدنان یعقوب سے. جی عدنان، بتائے گا ملتانی کتنے پرجوش ہیں؟ جی بالکل، پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن میں ملتان سلطان کی انٹری ہوئی ہے اور اس دفعہ ملتان سلطان کا پہلا ہی میچ پی ایس ایل کا ہوگا 21 تاریخ کو، جو پشاور زلمی کے ساتھ کھیلا جائے گا. ملتان کے جو شائقین ہیں، جو نوجوان ہیں، ملتان سلطان کا پہلا میچ دیکھنے کے لیے بے چین ہے، بےتاب ہے کہ کب ملتان سلطان کی ٹیم میدان میں اترے اور وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرے، کیونکہ پہلے میچز میں وہ دوسری ٹیموں کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن اب وہ ملتان سلطان کو سپورٹ کریں گے. نعرے بازی کی جا رہی ہے، ملتان سلطان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہم جانیں گے، آپ ہمیں بتائیے گا ملتان سلطان کا میچ ہونے کو تیار ہے پی ایس ایل کا 21 تاریخ کو، کتنا سپورٹ کریں گے، کیا جذبات ہے، کیسے میچ دیکھنے کی تیاریاں کریں گے؟ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ملتان سلطان کو اس پی ایس ایل کا فائنل جتوائے اور سارے میچز جتوائے. شعیب ملک ہمارے کپتان ہیں، ہم بیسٹ وشز ان کو کہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کپ لے کے آئیں گے. ملتان سلطان کے نعرے جو یہاں پہ بلند ہیں، ملتان سلطان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں ملتانیوں کو، اور اس دفعہ جب ملتان سلطان کی ٹیم میدان میں اترے گی تو یہی کہنا ہے شائقین کا، ملتان کے نوجوانوں کا، کہ ملتان سلطان کی ٹیم پی ایس ایل کا ٹائٹل اپنے نام کر کے واپس آئے گی. جی بہت شکریہ عدنان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ نیوز